माता पिता के समान कोई छाया नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई जीवन दाता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है फिर एक कहानी। फ्रेंड्स, जैसे इन पंक्तियों में बोला है, हमारे जो आने वाले पर्सनालिटी हैं वो इन पंक्तियों पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। उन्होंने माता पिता की छाया में ना ही सिर्फ अपने लक्ष्य को पाया है बट उसे सक्सेसफुली हासिल किया है। ही इज़ नॉट ओनली अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बट अ ऑथर, अ टीचर, अ ब्लॉगर, अ राइटर एंड व्हाट नॉट। लेट्स वेलकम CA कमल गर्ग सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आस्था, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सर, हमारे शो के पहले सेगमेंट का नाम है बस इतनी CA कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। जरूर जरूर। Sir, you came from a family where there are a lot of financial issues, but discipline was there, and you faced lot of medical issues as well in your family. So, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। Yes, you're right, Astha. There were issues. There are medical issues also, and medical issues still are persisting. But yes, when I was facing those issues, I was having no other option. So instead of facing it, I should correct that I was not facing it. I was moving with it. So वो कहते हैं ना, flow with the time. So I flowed with the time. And once you flow with the time, you know, things will fall in place by themselves. So that's the only thing which I can comment upon. Yes, there were issues, but इसी का नाम है जिंदगी. You have to face and you have to move on. सर, मेडिकल इश्यूज किस तरीके के थे आपकी फैमिली में? See, to put it very briefly, the medical issues were in respect of my mother's arthritis problem. Then my father is also having some problems regarding medical issues. But yes, as it said, that parents look after you. But in my case, God has been kind that we were given the opportunity to look after the parents in a sync way. So parents look after us and we look after the parents as well. सर, आपका 3 नंबर से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। 3 अटेम्प्ट CA फाउंडेशन के, 3 अटेम्प्ट IPCC के, फिर 3 अटेम्प्ट CA फाइनल के। तो आपने इस फेलियर को किस तरीके से डील किया? बिकॉज जब हम अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो बच्चे बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग क्विट भी कर देते हैं। तो हु वॉज योर लाइट ऑफ द लैम्प? सो रास्ता, यू आर वेरी राइट। 3 नंबर से बड़ा गहरा रिश्ता बन गया जब मैं CA कर रहा था। एंड यू राइटली पुट इन, आई टुक 3 अटेम्प्ट्स इन CA फाउंडेशन, आई टुक 3 अटेम्प्ट्स इन CA इंटरमीडिएट एंड आई टुक 3 अटेम्प्ट्स इन CA फाइनल एज वेल। सो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आता है ना, कंसिस्टेंसी। So perhaps this was the consistency which was meant for my life as a matter of chartered accountant student. And as I stated that, you know, when you have nothing to do, you have to do something. Because I took admission into chartered accountancy course and I knew nothing about any other thing. So I pursued chartered accountancy course. I pursued it with failures. I was demotivated also. But yes, one fine day my parents asked me, if you go back to your day 1 of CA course admission, what was your mission and vision? मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आपको day 1 से ही पता था कि इसका रिज़ल्ट ऐसा ही आता है। So it was your decision कि आपको CA करना है. You were aware of the result right from day 1. Now you have no time to repent. You have to pursue, you have to progress. And that's the reason those words of my father, that yes, you knew it from day 1 that you have no other option but to do chartered accountancy course. You knew it from day 1 that chartered accountancy course is having this kind of result. Still, it was your decision to pursue CA, and that's why you have no other option now to go back. So पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही चलना है. But yes, there would be failures, there would be demotivational aspects also. Ask yourself a question that day: why you started? The answer to why will be, I started to have this designation, so-called chartered accountant. And that is the light of the lamp. सर, मैंने आपसे लॉ भी पढ़ा है, ऑडिट भी पढ़ा है CA फाइनल का, एंड उस टाइम पे ऑब्जर्व कि आपकी जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स फीस। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या राज है? आस्था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैजिक है, इसमें कोई राज नहीं है, ये एक साज है, एक अंदाज़ है। अगर मैं इसको कम शब्दों में बताऊं तो आई वुड से कि आई हैव फेस्ड द अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एंड बिकॉज आई फेस द अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ दैट स्टूडेंट्स जनरली डू एक्सपीरियंस, द सेम थिंग आई वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द स्टूडेंट्स एज वेल. So the very moment I started and I took the decision to teach students for subjects of audit and law,
I decided that I will be putting my fees in such a fashion that it should not be exorbitant and it should be enough to cover up my livelihood. So I was not below break even, I was above break even, whereby both the parties were happy, the students as well as the teacher. I was able to earn my livelihood, and the teachers generally do keep bulky fees, which I should not comment upon, but yes, I must say my fees was not low. My fees was just on an average side, or I should say on a very equilibrium side. So students are happy because they were able to afford the fees. I was happy because I was able to contribute back to the students side by side, earning my livelihood also. सर हमारे शो का एक दूसरा सेगमेंट भी है जिसका नाम है यूं ही मेरा नाम नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। सर जब आप एक सीए एस्पिरेंट थे तब यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, बट नाउ यू टॉट ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल बैच। आप 500 से ज़्यादा GMCS के बैचेस कंडक्ट कर चुके हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो इस अचीवमेंट के बारे में आप हमें कुछ बताएं। सो आस्था, पहली बात तो मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सो डैट वन डे इट कुड बिकम एन अचीवमेंट। बट आपकी जो एक बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी, वो एक फैक्ट है। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मुझे पहली बार मौका दिया गया GMC से पढ़ाने का, तो यू नो वेरी वेल कि आफ्टर द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट्स आर सपोज टू गिव द फीडबैक। सो जब मैंने शुरू किया GMC से पढ़ाना, उस वक्त फीडबैक हार्ड कॉपी में दिया जाता था, और हार्ड कॉपी के फीडबैक फॉर्म के ऊपर एक स्केल होता था मार्क्स का 1 to 5। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। बच्चों को मेरी कॉम स्किल्स इतनी ख़राब लगी थी कि उन्होंने उस फॉर्म में मेजॉरिटी बच्चों ने एक कॉलम और बनाया और उसमें 0 लिखा और मुझे 0 मार्क्स दिए गए थे। सो आई वॉज सो डीमोटिवेटेड दैट डे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि आई कुड नॉट बिहेव लाइक अ टीचर इन द क्लास, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ एज अ टीचर इन द क्लास। तो जो 0 दिया गया, डैट गेव मी अ हार्ड हिट कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है। और तब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ टीवी शोज़ देखने शुरू किए, अंग्रेज़ी चैनल्स सुनने शुरू किए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू किया। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस होल improvement exercise, I was able to have a command over vocabulary but not over delivery of that vocabulary. But yes, फिर एक चैलेंज और लिया मैंने कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं ऑडियंस को एड्रेस ज़रूर करूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी कह लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं आप, बाय वर्च्यू ऑफ पेरेंट्स ब्लेसिंग कह लीजिए, वन फैकल्टी वाज एब्सेंट फॉर GMCS एंड दैट डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आप GMC से पढ़ाने आइए। मन की बात यह है कि जब मुझे कहा गया कि आपको GMC से पढ़ाने आना है, आई वॉज सो टेरिफाइड इन माई हार्ट कि जिन बच्चों ने मुझे 0 दिया था, अब एक नया बैच है, वहाँ जाऊँगा तो दोबारा से बेइज्जती नहीं हो जाएगी। उस वाले बैच को एड्रेस करने के लिए, इट वॉज माई सेकेंड बैच टू एड्रेस, उस वाले बैच को एड्रेस करने के लिए मैंने मेहनत की, अपनी स्पीच प्रिपेयर की कि जो स्पीच मुझे GMC में बोलनी होगी, अपने लेक्चर को प्रिपेयर किया। मैं लेक्चर लेने गया, आई विल नॉट से इट वॉज द एक्सीलेंट और अ गुड लेक्चर, लेकिन जब मैंने लेक्चर अपना कंप्लीट किया शाम के समय, जब वापस लौटने लगा, तो मेरा जो फीडबैक मुझे मिला, वो फीडबैक ये मिला कि बच्चों ने मुझे, सबने 0 नहीं दिया था, किसी ने 0 दिया, किसी ने 1 भी दिया, किसी ने 2 भी दिया। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ बिलो एवरेज बट अबव 0 स्कोर। सो डैट गेव मी अ लिटल पुश कि अगर 2 क्लासेस के बाद इतनी इंप्रूवमेंट में लेकर आकर काम कर सकता हूँ तो शायद भविष्य में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। दिस वे द जर्नी स्टार्टेड। कभी मुझे GMC में इन्विटेशन आता था, कभी नहीं आता था। ग्रेजुअली माई स्केल स्टार्टेड गेनिंग द हाइट्स। मुझे 5 भी मिलना शुरू हुआ और 5 कंसिस्टेंटली मिला। एंड वन फाइन डे इट हैपेंड, आई गोट द बेस्ट फैकल्टी अवार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड जब वो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला, दैट गेव मी अ न्यू लेवल ऑफ मोटिवेशन टू वर्क मोर हार्डर। एंड दिस वे आई गोट, if my memory serves me right, I got around 6 awards as a best faculty consistently. So that is a kind of new era for me where I discovered and rediscovered myself. So I would suggest each one of the listener that you have to be consistent, not only by your efforts but your executions also. Effort का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी स्पीच तैयार की,
एग्जीक्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप स्पीच को डिलीवर भी कर आ रहे हो. सो यू नो, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, एफर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन बोथ द वेज, एफर्ट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन. सर, जब आपने सीए कंप्लीट कर ली तब आपने टीचिंग और प्रैक्टिस चुना रादर देन जॉब करना, जबकि उस टाइम पे आपकी फैमिली में एग्जिस्टिंग बहुत सारे हर्डल्स थे. तो आपको नहीं लगता उस समय के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था? यस आस्था, यू आर राइट. ये एक बहुत बड़ा रिस्क तो था, लेकिन मेरे पास कुछ करने को और था भी तो नहीं. यू नो, आई केम इन टू प्रैक्टिस नॉट बाई चॉइस. आई केम इन टू प्रैक्टिस बाय वर्च्यू ऑफ अ फैक्टर, दैट इज कंपल्शन बाय इम्पल्शन. मेरे अटेम्प्ट्स लगे हुए थे, दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी, दैट वाज ऑल्सो अनदर रीज़न कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. इंटरव्यूज़ के अंदर सिचुएशन ये थी कि जब मुझसे सवाल पूछा जाता था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मुझे केवल 2 ही सेंटेंस याद आते थे, माई नेम इज़ कमल गर्ग, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आता था कि मैं क्या जवाब दूँ. सो बिकॉज आई वॉज फेलिंग इन द इंटरव्यूज़, आई वॉज हैविंग नो अदर ऑप्शन बट टू डू समथिंग एल्स. और जहाँ तक सवाल है जॉब का, कुछ एक जॉब ऑफर्स मुझे विदेश से भी मिले, कुछ एक जॉब ऑफर्स मुझे आउटसाइड दिल्ली से भी आए, बट क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर मेरी ज़रूरत थी और मैं फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता था, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा कि मुझे प्रैक्टिस में ही आना पड़ा. नाउ जब प्रैक्टिस में आ गया तो उसके बाद एक नया हर्डल क्रिएट हुआ, एंड द हर्डल वाज हाउ टू गेट द क्लाइंट्स. सो ऑन वन साइड आई वाज yearning for the clients, I was doing the efforts to get the clients. On other side the question mark was about what to do. टीचिंग में आना भी इतना आसान नहीं था, बिकॉज टीचिंग रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ ब्रांड वैल्यू टू बी क्रिएटेड, एंड आई वॉज हैविंग अ जीरो ब्रांड, एंड दैट इज़ द रीज़न माई फादर केम टू माई रेस्क्यू. सो जब मैं इन सभी चीज़ों को जूझ रहा था, इनको फेस कर रहा था, माई फादर गेव मी वन लाइट, एंड द लाइट वॉज, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि क्या तुम्हें पता है कि सीए के सिग्नेचर्स की कीमत क्या होती है, वैल्यू क्या होती है. तो अगर सीए के सिग्नेचर्स की कीमत है तो आप अपनी कलम को अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते. And that was the idea which made me think over one more issue. Why not I should start writing something? इंटरव्यू के अंदर जो लोग मेरी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे या मुझे मौका नहीं मिल रहा था मेरी बात को पेश करने का, उसको मैंने लिखना शुरू किया. I wrote several articles, and one fine day I thought of writing a book also. और जब वो बुक लिखी मैंने, तो बुक लिखने के बाद मैं जितने ही पब्लिशर्स के पास गया, renowned publishers are there which I don't want to name here, all those renowned publishers gave me a kick कि we are not interested, but that gave me one more kick also, and the kick was that I should approach one more publisher, and the last publisher भारत ला हाउस प्राइवेट लिमिटेड. जब मैं इनके पास गया तो इस पब्लिशर ने मुझे ये नहीं कहा कि कमल आपकी किताब हम नहीं छापेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, बिकॉज आप तो अभी यंग सीए हो, आपको तो अटैम्प्ट्स लगे हैं. इस पब्लिशर ने कहा कि रीडर के टेबल पर आपके अटैम्प्ट्स नहीं जाएंगे, रीडर्स के टेबल पर जाएगा आपका कंटेंट. एंड देन दे पब्लिश माय बुक. दैट बुक वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट, एंड दैट गेव मी अ न्यू रूल ऑफ लाइफ. द न्यू रूल ऑफ लाइफ वाज टू शेयर योर आइडियाज विद पब्लिक एट लार्ज. एंड फॉर मी, हु वाज द पब्लिक? The public was students, the public was members of ICI, and that is the reason I started thinking how to come into teaching. GMCS by now मैं शुरू कर चुका था, and you know एक कहावत है ना अंग्रेजी में, God help those who help themselves. तो जब मैं GMCS में पढ़ाना शुरू कर चुका था, तो GMCS में पढ़ाने के वक्त पर इंस्टीट्यूट के प्रीमाइसिस में टॉप फ्लोर पर GMCS होता था, ग्राउंड फ्लोर पर ऑडिट क्लासेस होती थी. One faculty was not available for audit class on a particular day, और बच्चे सब आ चुके थे क्लास अटेंड करने के लिए. तो इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने मुझसे कहा कि कमल जी, आपकी किताबें हमारी लाइब्रेरी में रेफ़र की जाती हैं, आज ऑडिट का फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप आज के लिए ऑडिट के स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन्ट टू टैप इट. मैं ऑडिट का लेक्चर लेने के लिए बच्चों के सामने पेश हुआ, एंड गॉड वाज सो काइंड. जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उन्हीं बच्चों ने इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन लिखा कि हमें कमल गर्ग सर से ही पढ़ना है, एंड दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. यू नो द जर्नी आफ्टर दैट, एंड दिस गेव मी अ पुश टू ट्रैवल पैन इंडिया. आई टॉट स्टूडेंट्स इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द नेशन, एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. सो इसके वजह से जो कंक्लूसिव रिमार्क में देना चाहूँगा वो ये हुआ कि आई केम इन टू टीचिंग मे बी
because of that writing skills, communication skills, and yes, destiny at large. As far as your practice is concerned, I came into practice as I stated by compulsion, not by choice. But yes, when you are into practice, you have to work hard for practice also. Gradually, the people who were reading my articles, the people who were reading my books, they became my clients also. And that is the reason Kalam Ki Taakat. So I would suggest, and when I was teaching in GMCS, I also recommended to the students that you should make your brand. And your brand can be made by virtue of your Kalam Ki Taakat as well. So keep on writing good articles so that you can share your knowledge which you have grasped over a journey of life known as Chartered Accountancy. सर हमारे शो का एक तीसरा सेगमेंट भी है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. तो इसके अंदर आई एम जस्ट गोना आस्क सम क्वेश्चंस और मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी एंड जो भी आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा होगा आपको वो मुझे बताना है. So it is something like coffee with Astha. Right. With no coffee. Right. तो सर पहला क्वेश्चन है टीचिंग या प्रैक्टिस? Teaching. The reason being teaching being my first love. And you know, पहला प्यार का ही भुलाए नहीं भूलता. So teaching will be my answer for this one. Okay. सर कलम की ताकत या जुबान की ताकत? कलम की ताकत 100%. जुबान की ताकत कई बार आपके अगेंस्ट जा सकती है, बट कलम की ताकत आपको बचा सकती है. सो कलम की ताकत. सर क्लाइंट्स को समझाना, एक्सप्लेन करना या स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना? देखो वैसे तो दोनों अनइक्वल्स हैं, बट येस स्टूडेंट्स को समझाना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है और क्लाइंट्स को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है. सर लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? लाइव क्लासेस. जब तक आप बच्चों की आंखों में आंखें डालकर पढ़ा ना लो, थोड़ा डांट ना लो, थोड़ा सा प्यार ना कर लो, पढ़ाने का वो आनंद नहीं होता. सो लाइव क्लासेस ऑलवेज. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर पहले से मालूम है वैसे तो, बट स्टिल आई एम गोना आस्क. पिता की शाबाशी या बेस्ट फैकल्टी अवार्ड? वैसे इस क्वेश्चन के आंसर के बाद शायद मुझे डांट पड़े पापा से, बट येस स्टिल आई विल से बेस्ट फैकल्टी अवार्ड. क्योंकि बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिलने के बाद जो पिता की शाबाशी मिली वो अनमैचेबल है, अनकम्पेरेबल है. सो एट ऑल वर्जन्स आई विल से बेस्ट फैकल्टी अवार्ड. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच. बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे उन सभी सीए एस्पिरेंट्स के लिए या उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी एक फेलियर हर्डल फेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स. सो व्हाट आई कैन शेयर आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस इज 2 थिंग्स. लोग कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, बट मैं कहूँगा कि रोना ज़रूर चाहिए. मैं भी रोया हूँ, मैं भी उसको फेस कर चुका हूँ. सो आई वुड से कि you should cry emotionally, but after you cry, you should not dry up passionately. So keep your passion always on a lofted side. So please do cry, but don't ever dry. और दूसरी चीज़, कभी भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ, डिफ़िकल्टीज़ आएँ, which are bound to come up because it's life. So अपने आप से सवाल ज़रूर पूछिएगा और इसका उत्तर भी आपको खुद ही मिलेगा. आपका सवाल आपसे ये होना चाहिए, what is important for you, what you feel और what you deserve. तो जब फीलिंग्स की बात हो जाएगी तो फीलिंग्स तो आती जाती रहेंगी, बट जो आपका डिज़र्विंग पैरामीटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. सो व्हाट यू फील और व्हाट यू डिज़र्व शुड बी द गुरु मंत्रा फ्रॉम माय साइड. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे शो पे आए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. प्लेजर आस्था, इट्स प्लेजर टू बी ऑन योर शो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर शो. जल्द ही मिलेंगे फिर एक कहानी के साथ.